Today's topic is good morning everyone. Today's topic is ozone layer depletion and its control measures. Now, first of all, we should know what do you mean by ozone. Ozone is the an isotope of oxygen. Oxygen and ozone are two isotopes. Oxygen is O2 and ozone is O3. So we can now see the properties of the ozone. It is triatomic. Ozone oxygen is diatomic, weight is 32, its weight is 48. Oxygen is colorless, but the color of ozone is there, that is the light blue color. You can see the color. The oxygen has no odor, but ozone has odor. So you can see the properties over here. We compare the properties. We can also compare the electric potential, which is very much higher of ozone 2.07 and oxygen is 1.23. So we can also identify the solubility. Oxygen is soluble less than the ozone, and density is also, ozone is more dense than the oxygen. Boiling point is also very much lower of ozone than the oxygen. Now, how ozone is formed? It is formed. It is not found in the troposphere or the Earth atmosphere. Actually, it is found in the stratosphere, which is 25 to 50 kilometer above the Earth atmosphere. And also, we can say that ozone is a stratospheric gas. It is present in the stratosphere, so it is a stratospheric gas. And in the first picture you can see in the number 1 that lightning occurs, and when the lightning occurs, the oxygen which is present in the air break down into, here the blue color dots, you can see these blue color dots here. These blue color dots shows the O2, that this is the O2. O2 is the oxygen. They break down into O plus O, and when one O2 plus oxygen combine, and it form a triatomic blue color ozone. Now this is ozone. Now this particle is ozone. Now in the second picture you can say both break down. Now first case in which we can find out when the lightning occurs, then the ozone layer depletion occurs. In the second picture you will see that the UV radiation coming from the sun break down the oxygen in the stratosphere. Stratosphere at the very much height in the stratosphere. So in there are two ways. First way, during the lightning process in the electrical discharge, then the oxygen breakdown and the oxygen atom combined with the oxygen molecule to form the ozone. In the second case, the UV light which is coming from the source, from the sun, then it breaks down the O2 molecules, which are the light blue in color, and then the O2 breakdowns, and then O3 is formed. Now you can easily see some same methods through which we can make them in the laboratory also. In the laboratory we can make by corona discharge, in which the airflow is done, and after airflow at a very much force speed or voltage discharge, then the electric current is discharged in between that high electrodes, ground and high voltage current, then ozone is formed. Now what are the advantages of the corona discharge? It generates the ozone in high concentration, and it is best for the water control application, and organic removal is there. Do you know the single lightning process also produces the ozone with 300 lbs, and it is very much important that we should know the characteristics of ozone, how to make it in the laboratory scale. Now when the airflow is done with the UV light, this is the second method which we can do in the small scale at laboratory. When oxygen is passed with some UV light, airflow is done and UV light is passed through them, then at 185 degree nanometer of the UV light in ozone bulbs, they form the O3. Then what is the advantage of UV light?
It is simple, it easy and lower cost, and output does not affect by the humidity. So in this way the ozone can be formed. And then what are the advantages of the ozone? Now when we are talking about the advantages, it is very much important to know the advantages, because if we don't know about the advantages, how we can say that ozone is very much important for us. Okay, now I hope you can see this thing now. Ozone is the most powerful oxidant, and because of this oxidizing property we use it for the disinfecting water and sanitizing the things. Now ozone can kill the pathogens. Various kind of pathogens are killed in within the seconds because of this oxidation property. Now oxygen is one of the strongest oxidant available, so we can decompose it to form the oxygen also. Ozone itself does not affected by pH. Ozone can be stored, and therefore the large volume of dangerous oxidizer can be easily cannot be stored. It can be formed at the spot, and it is excellent to oxidize iron, manganese and other elements too. So it has very much industrial application, beta ji. And then we have this ozone, oxidizing ozone, and we can see that it has the maximum oxidizing potential greater than H2O2. H2O2 जो ब्लीचिंग करता है, या परमैग्नेट या परक्लोरस एसिड, उससे भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ओजोन का है, यहाँ पर हमने जो कंपेयर किया है. नाउ द नेगेटिव्स ऑफ द ओजोन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है तो ये हमारी बॉडी को पर इफेक्ट कर सकता है. ये हमारी बॉडी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, हमारे टिश्यूज़ को अफेक्ट कर सकता है. और इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि अगर हम अर्थ पे रखेंगे तो किसी भी चीज़ में, इवन जो हमारे रबड़ हैं या मटेरियल्स हैं, किसी भी मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, ख़राब कर सकता है, हमारे बालों को ख़राब कर सकता है, पेट्स को ख़राब कर सकता है, प्लांट्स को ख़राब कर सकता है, मतलब हमारी आँखों के जो कॉर्निया है उसको अफेक्ट कर सकता है. तो रियली इट इज़ वेरी मच डेंजरस एंड इट शुड नॉट बी ऑन द अर्थ. ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेफ़ यूज़ नहीं कर सकते हम इसको गैसोलीन की तरह. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है. सिर्फ ये फ़ायदा है कि ये बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह को कोड सकता है. इसकी हाफ लाइफ पीरियड भी होती है क्योंकि अनस्टेबल होता है. ये ज़्यादा देर तक ओजोन हमारी अर्थ पे रह नहीं सकती. ओजोन से फिर थोड़ी देर में वो क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ पीरियड कितना है, यानी कितने टाइम में O3 O2 बन जाती है. तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपको बताना है कि 20 to 60 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, हम ये कह सकते हैं कि O3 इज़ कन्वर्टेड इनटू O2. तो मोस्टली जो है वो अगर हाई पीरियड है तो जल्दी बन जाएगा, अगर कम है तो देर इज़ अ लेस चांसेस टू फॉर्म द O3. नाउ स्टोरेज, आई टोल्ड यू दैट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट. तो ये उसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, किसी भी चीज़ को ये फाड़ देगा, काट देगा. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको किसी भी उसमें स्टोर कर सकें, पंचर करके रख सकें. और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने रखी हुई हैं कि कितने टेम्परेचर पे, कितने उस पर ये क्या कर सकता है, रख सकता है. इसकी pH जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है. तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए ना. ओजोन को सेफ्टी में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स लोग, या कहाँ कहाँ हम ओजोन से सेफ्टी कर सकते हैं. ओजोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र एंड इट जनरली नॉट हार्मफुल टू मैमल्स एट लोअर कंसनट्रेशन. ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए या हमारे लिए लीथल है, हमारे लिए हार्मफुल है बैक्टीरिया वगैरह के लिए. पर ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण हार्मफुल है, पर इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है. तो पोटेंशियल हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो इसके हैं वो क्या क्या हैं कि इसे अगर हम इनहेल कर लें तो ये हमारे नाक में जाकर हमारे मुंह को या उसकी जो थ्रोट है उसको जला सकता है, उसको प्रॉब्लम कर सकता है, हेडेक कर सकता है, ईचिंग कर सकता है, फटीग कर सकता है. फटीग मतलब हम थके थके रहेंगे, हम परेशान रहेंगे. एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, पंजेंट स्मेल आती है, इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी सी स्मेल होती है, और बहुत लो कंसनट्रेशन में, सिर्फ 0.005 ppm पे भी इतनी तेज तीखी आवाज़ होती है. एंड मूव टू फ्रेश एयर, हमें जल्दी से अगर हम इसके कंडक्ट में आ जाते हैं, अगर हमने कहीं इनहेल कर ली गलती से, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए. भाग के हमें हवा में जाना चाहिए, लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, और अपने जो क्लोथ है उनको खोल देना चाहिए. अगर मतलब बटन मतलब खुले कपड़े पहन लेने चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उस टाइम पे. और जितना ज़्यादा हो सके मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मेडिकल अटेंशन नहीं लेंगे
तो वो हमारे जो है माउथ वगैरह में जा सकती है, हमारे इफ़ेक्ट कर सकती है। और स्किन में भी ये प्रॉब्लम करती है। स्किन को इंटैक्ट रहने से ये स्किन कैंसर क्रिएट कर सकती है, इसलिए धोना चाहिए सोप और वाटर से। आई कांटेक्ट में आ जाए तो आई के कॉर्निया को भी माइनर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसलिए वाटर से बहुत ज़्यादा अमाउंट तक धोना चाहिए। और ज़्यादा हो सके तो फ्लशिंग करनी चाहिए आई लेंसेज की। और ज़्यादा दर्द परसिस्टेंट रहे तो हमें मेडिकल अटेंशन भी दिखानी पड़ सकती है। इसको इंजेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये अंदर तक हमें ख़त्म कर देगी। एग्रीवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस अगर होती हैं तो सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज़ होने से हमें ब्रोंकाइटिस या ब्रोंका जो हमारा अंदर का होता है वो ख़त्म हो सकता है, अस्थमा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्रोनिक कंडीशन में हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, सेफ रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं ओजोन के शॉर्ट टर्म के इफ़ेक्ट में, इसीलिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। इनहेल नहीं करना, इनिशिएट नहीं करना, बहुत कम कंसंट्रेशन में आसपास में होना चाहिए। सेकंड्स में ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर और हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स इसके अंदर आए हैं, इससे पर्सन की ऑर्डर की स्मेल ख़त्म हो गई है, नॉर्मल पर्सन को दिखना कम हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो अफेक्ट होते हैं, आई नोज़ थ्रोट या हेडेक या जो ये इचीनेस हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। और लीथल अगर थोड़े से ज़्यादा डोज कर दो तो डेथ भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया वायरस। तो आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से ये ब्रेन के अंदर भी जाकर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाकर हमारी ह्यूमन बॉडी के भी ऑक्सीडेटिव सेल्स को बस्ट कर सकता है किसी तरीके से भी। ये देखिए आप इसको बस्टिंग कर सकता है, ऑक्सीडेटिव वाइट ब्लड सेल्स उनको तोड़ देगा ब्लड स्ट्रीम में। एंड द बैक्टीरिया विल एनवेलप इन द वाइट सेल वंस द सेल विल ब्रेक डाउन। एंड जैसे ही वो टूटेगा तो टूटते ही वो मर जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन की वजह से ही जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, देखो ये जो ब्लू कलर का ये हमारा ओजोन है, और ये बैक्टीरिया के सेल पे जाके ऐसे इनिशिएट किया और जाके उसको क्या करेगा, नंबर 1 में तो आपको सेल दिख रहा है, नंबर 2 पे आपको ओजोन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो सेल पे, तीसरे नंबर पे जाके इंटैक्ट हो गए, चौथे पे जाकर उसके अंदर पहुंच के उसका कलर चेंज कर दिया, उसकी ऑक्सीजन लेवल को कम कर दिया, और 5वें नंबर पे आपको दिख रहा है न्यूली क्रिएटेड होल इन द सेल वॉल हैज़ बीन जर्ड द बैक्टीरियम। नंबर 5 पे आप देखिए बैक्टीरियम बिगेंस टू लूज़ द शेप, उसकी शेप ख़राब होने लग जाएगी ओजोन मॉलिक्यूल की वजह से। कलर देखो बिल्कुल डार्क हो जा रहा है इसका। और नंबर 6 पे कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ द सेल्स आर कोलाइडेड, और कोलिजन के बाद वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते, मर जाते हैं। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर जो ओजोन है वो हमारे बैक्टीरियाज को किल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओजोन अफेक्ट ऑन द पैथोजेंस बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। जो रेड कलर के हैं वो बैक्टीरिया हैं, जो येलो कलर के हैं वो वायरस हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो मोल्ड्स हैं। जैसे आपकी मोल्ड है ना ये, पर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि नोज़ वगैरह में आप कहीं सोचे कोरोना वायरस के लिए हम इसको यूज़ कर लें, बट कोरोना वायरस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन डिफाइनिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम डिप्लीशन की बात करेंगे कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर पे है, इसको मेज़र किस में करते हैं, इसको डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। इसके साइंटिस्ट ने, डॉप्सन साइंटिस्ट ने इसकी जो यूनिट बनाई थी उसी के नाम पर हम इसको डॉप्सन में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। एंड ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। इट कंटेन्स O3 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। इट हैज़ अ लार्ज होल डिटेक्टेड इन 1985। ऑब्जर्व द लॉस ऑफ, वी आर ऑब्जर्विंग द लॉस ऑफ द ओजोन इन द this layer, and therefore the depletion is called, there is a thinning of this layer, and because the ozone जो कम हो गई, जो डॉप्सन में कम हो गई है, and due to human activities you can see this is called as ozone hole. And the worst it is occur in the Antarctica. We can see this is the pictures of Antarctica. Here the 33% since 1975 is destroyed। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि वहाँ पे तो कोई ह्यूमन बींग ज़्यादा रहते नहीं है, पोलर रीजन में है भाई, they have higher variation in the sunlight, also some लो टेम्परेचर भी रहता है वहाँ पे, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्रिस्टल्स बनते हैं या वहाँ पर स्नो बनती है। तो इस तरीके से जो मेन कॉजेज़ हैं वो क्या हैं हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन के, कॉस्मिक रेज की वजह से, सल्फ़र की वजह से, और द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, जब वो बैक्टीरिया और क्लोरीन की वजह से जब ऊपर आते हैं तो वहाँ पर उनमें क्लोरीन और ब्रोमीन नाइट्रस ऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ओजोन को तोड़ देते हैं O2 के अंदर। तो इस तरीके से ये दिख रहे हैं आपको, अलग अलग कलर के थ्रू बता रखा है कि किस तरीके से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में ये जाकर रिएक्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, और यहाँ पर ये ब्रोमीन, क्लोरीन और नाइट्रस ऑक्साइड जाके इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इफेक्ट करते हैं। ये सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको स्ट्रेटोस्फेरिक, इसमें यहाँ पे ओजोन डिप्लीट होती है। तो ये कैसे होती है, वाई, नाउ यू कैन ईजिली सी थ्रू दिस पिक्चर।
कॉस्मिक रेडिएशंस आएंगी। कॉस्मिक रेडिएशंस कंटेन यूवी रेडिएशन, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, और ये क्या करती हैं, इनमें जो बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो आपको सेंटर में कार्बन दिख रहा है, 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, फ्लोरीन दिख रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, अब ये ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं ऑक्सीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये देखो, ये जो ब्राउन कलर का कंपाउंड है ये ओजोन है। ये क्लोरीन ओजोन के साथ मिलकर ClO बना रही है और इसको तोड़ रही है ClO प्लस O2 के अंदर। इसमें तोड़ रही है ClO प्लस O2 के अंदर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन है, और ये 88 तरह के प्रोपोलेंट्स हैं। ये अनरिएक्टिव रहते हैं, ये एटमॉस्फेयर में 35 साल तक रहते हैं और इन चीज़ों से रिलीज़ होते हैं, जैसे प्रोपोलेंट से या कार से या रेफ्रिजरेटर से या जो डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी से, इंडस्ट्री से, और ये सारे कहाँ पहुँच जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाते हैं। ओजोन साइकिल का हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि ओजोन में 3 तरह की जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन एटम होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन ओजोन गैस होगी। ये तीनों तरह के मिलते हैं। वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में क्लोरीन होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, O3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। ये आप देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, सन से यूवी रेडिएशन निकल रही है, यूवी रेडिएशन, और एक तरफ O2 है। देखिए इस तरफ हमारे पास, इस तरफ ये O2 है और इस तरफ O3 है। इसमें O3 से O बन गया और O3 से O बना, इसका मतलब ये O2 में कन्वर्ट हो गई, तो इस तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशंस ऑन द ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ओजोन लेयर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में हुई है और इसको हमने मतलब स्टडी किया है, मार्क किया है। देयर इज़ अ डिक्रीज बाय द TOMS। TOMS क्या है हमारा, ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके थ्रू हमने ये दिखाया है कि इसकी कंसंट्रेशन में कमी आई है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं, इनमें भी बहुत सारी जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन अभी मैंने दिखाई थी, जिसके वजह से ये अंटार्कटिका में देयर इज़ अ डिप्लीशन। नाउ व्हाई वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन, बिकॉज अगर डिक्रीज़ होगा ओजोन लेयर में तो 60 साल के अंदर ये डिक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा UV रेडिएशन कम इन टू द वर्क। और सडन 1985 में एक होल डिस्ट्रक्ट मान लिया गया। होल का मतलब क्या कि देयर इज़ अ थिनिंग। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज़ की चिंता करने लगे कि अगर ऐसे हर जगह पे होने लग गया डिप्लीशन, तो उसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ओजोन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। और ओजोन क्या करती है, यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, और यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने से वो हमें कैंसर से या अलग प्रॉब्लम से बचाती है, और वो अर्थ पे नहीं आनी चाहिए। If the conditions become more severe, the global ozone may decrease at the greater pace. When the Antarctica ozone hole break up, the ozone depleted air drifts and into the air nearby air spaces. Now, what are the consequences or effects on the ozone layer depletion? If the ozone layer get depleted, the increased amount of UV radiation will be found on the earth, and it will increase the cancers due to the UVA and UVB. We can find out that there is a various effect on the human health also. It will create the leukemia, that is the skin cancer. It will create the human beings problem in the human beings, especially cataract and cornea problems is there. No, the smell power is gone, the hair loss is there, the conditions are deteriorating because the ozone is very much cooperating with the body and their parts. The internal organs are affected. Even in the higher concentration, if we have concentrated with the ozone, then we have death also. Crop production is very much affected. The crops get various diseases there. Leaves are affected, their necrosis is there, the leaves tissues get affected. Most of the plants have the less yield, पैदावार कम हो जाएगी, and because of that we have the very much pressure on the agriculture activities. Effects on the non-human animals. Non-human animals also may get affected. Their biodiversity loss, their reproduction system affected, their skin affected. Most of the animals migrate to the other areas and they have the less reproduction rate. Then ozone depletion and the global warming. Some of the scientists even think that there is a link between the global warming and ozone layer depletion, and 5 areas of the linkage of the ozone layer and global warming are: number 1, the same CO2 which is responsible for global warming can cool the stratosphere, and that's why cooling in turn
increases the ozone depletion. If more cooling is there, then the ozone depletion will be also very much higher in the polar regions. So Antarctic hole can be determined because of this increase in the CO2 content. Now if we go to the opposing effects, reduced oxygen ozone causes the stratospheric to absorb less solar radiation. If there are less of the ozone, then the less radiations are absorbed, resulting into the colder stratospheric. Well, the stratosphere becomes more colder and will emit less of the radiations, and therefore the earth surface is also get very much cooled, and cooling dominates through the greenhouse effect. और इट मीन्स इज दैट द ट्रोपोस्फियर तो गर्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर कूल हो रहा है, दोनों की अंदर उल्टे इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो दीज इफेक्ट्स आर ऑन द कंसनट्रेशन के भी. हाँ, दोनों में अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो एक कंडीशन पे आकर ओजोन लेयर डिप्लीशन भी बढ़ेगी और उसके बाद कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. दैन ओजोन लेयर डिप्लीशन chemicals are often greenhouse gases, like they are decrease they increases the chemical up to 14% in the total radioactive, and increases the concentration of the mixed greenhouse gases, basically like chlorofluorocarbon, methane, ozone, and water vapors, carbon dioxide. The long-term modeling of the process is the measurement and the study of the theories through which we can identify the causes, why the greenhouse effect is there and why the global warming is increasing with the ozone layer depletion. Now the Ozone Day is celebrated in 1994 for the first time, and the United Nations General Assembly declared 16 September as the World Ozone Day to accommodate about the date of the Montreal Protocol in 1987, that is 16 September, and annually now we form World Ozone Day on this day. Now what is the good and bad about the ozone? I told you that ozone is is not present in the earth's surface, so it is an air pollutant in the troposphere and cause the respiratory problem, bronchitis and other problems, asthma problem, allergies problem. And good is that it is on the stratosphere, and it protects us from the harmful UV radiation coming to the earth's surface and the converting into heat. Now we should want that it should remain in the stratosphere, not come to the troposphere. It's our prey. And ozone cycle, that is it is the UV radiation. Now UV radiation are basically we can say that required to break down the ozone. UV radiation are three types. I told you UVA, B, C. Their intensity is different, their wavelength is different. UVA have the 320 to 400 nanometer wavelength, B has 280 to 320, and C has 200 to 280. Now 100% is absorbed by C, and 95 is absorbed by B, and 5% only is absorbed by the UVA. So the UVA cause the little damage, UVB cause the maximum damage, causes sunburn, genetic damage, skin cancer and prolonged exposure, and UVC cause the maximum disease या maximum skin cancer, leukemia. Now how it is formed? I told you that oxygen, when the radiation is less than 240 nanometer fall, it becomes the two atoms of oxygen. Now O2 molecule is there. O2 मोलिक्यूल से क्या बन गया, O के दो एटम बन गए, ऑक्सीजन के दो एटम बन गए. ये दोनों एटम क्या करेंगे, दोबारा से फिर किसी ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ओजोन प्लस हीट बनाएंगे. नाउ दिस ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर. इन दिस वे द ओजोन कैन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फियर. ना ओजोन क्या करता है, ओजोन करता है कि दैट ओजोन जैसे आपको पता है कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. सो वन ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 240 to 310 नैनोमीटर, एंड केमिकली रिसर्व इट इज़ द अपोजिट ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस. अभी जो मैंने आपको दिखाई थी इक्वेशन, उसका बिल्कुल उल्टा है. देखो आप यहाँ पे क्या बन रहा था, O2 प्लस O गिव्स यू O3 प्लस हीट. यहाँ पर हमने क्या किया, जो सन से हीट आई, O3 ने वो एब्जॉर्ब किया और क्या बना दिया, O2 प्लस O बना दिया. तो इस तरीके से ये बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और ओजोन का. केमिकल बैलेंस की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती. ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है और ऑक्सीजन हमारी ट्रोपोस्फीयर में रहती है. तो इस तरीके से दोनों के अंदर बनती रहती है. पेनिट्रेटिंग यूवी रेडिएशन इज converted into heat without any net loss, and in this way the O2 plus O gives you O3.
Now the oxygen ozone cycle, removal of the ozone. If you remove the ozone, then you know that ozone plus O gives you 2 molecules of oxygen. So luckily in this reaction we got 2 molecules of oxygen out of ozone. However, the balance can be affected by the human activity. But nowadays the depletion occurs because of the chlorofluorocarbon. That UV radiation when strike to chlorofluorocarbon, they form the chlorine reagent. Now this chlorine reagent react to form like this is the example, that CFCl3. Now CFCl3, Cl radical becomes, and CFCl2 becomes the counterpart. Now this Cl radical react with the O3 in the first step to form ClO radical and O2. In the second step, the ClO reacts with the nascent oxygen and forms Cl plus O2. Now this oxygen molecule, now this Cl radical is again free now to break down another ozone molecule. In the second step, this Cl radical is again free to react. So in this way, one chlorine radical can break down 1 lakh of the ozone molecules, and in this way cycle goes on, and the ozone molecules continuously break into the 2 molecules of oxygen, and which is very much थॉटफुल प्रोसेस. और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित रहना पड़ेगा कि भैया हमारी एक क्लोरीन रेडिकल ने 1 लाख मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया. इस तरीके से रिएक्शन होती रहती है और वो 35 साल तक वो ऑक्सीजन CFC मोलिक्यूल्स हमारी एयर में रहता है. अनदर रेडिकल दैट ब्रेक डाउन्स द ओजोन इज द NO. NO क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O3 गिव्स यू NO2 plus O2. Now this NO2 in the second step reacts with oxygen to form NO plus O2, and this NO radical reacts to form the oxygen, reacts to form free, become again free, and forms the oxygen molecule. Now overall reaction, when we talking about that, O3 plus O gives you 2 molecules of oxygen. Now this in the Antarctica you can see there is a hole, the 4% drop of the ozone levels in the earth, and now North Pole and South Pole they have much larger, and the seasonal variation. कौन कौन से ऐसे सीज़न है जिसमें हमें वेरिएशन दिखता है? एक तो मार्च में दिखता है और एक सितंबर में दिखता है. दोनों ही ऐसे केस हैं जिसमें वो डिक्रीज़ होता है. ऐसा क्यों होता है? और इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या बनाते हैं? ओजोन डे बनाते हैं. रेगुलेशन के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई. इस ग्लोब का सबसे ज़्यादा मतलब साइंड किया हुआ एग्रीमेंट है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने के लिए बोला गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए. CFC जो है वो अब कई जगह यूज़ नहीं होते हैं, और इस प्रोटोकॉल के तहत 2006 में भी ट्रीटी की गई थी. 197 कंट्रीज़ हैं जिनको साइन किया था. तो अब ज़ीरो लेवल से प्रोड्यूस किया जा रहा है. 2000 से आज 21 साल हो गए हैं. हम टेट्राक्लोरोइथीन को यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट, जब हम कि इसको यूज़ ही नहीं कर रहे 1,1 ट्राईक्लोरोइथीन को. तो इस तरीके से मतलब HCFC का और HFC का जो हमने रिप्लेसमेंट है वो ढूंढ लिया है, जिसकी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं. तो नाउ ए प्रॉब्लम विद HCFC एंड HFCs आर देयर नाउ नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग. ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, एंड दे वांट्स टू कॉल आउट द HC एज ए बाय द 2030. हम सारे के सारे जो प्रोटोकॉल हैं उसके थ्रू हम सारे का सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2030 के तक ख़त्म कर देंगे, और हम चाहेंगे कि 1 लाख से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के वो भी ख़त्म कर दिए जाएँ, ताकि देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ना सैटेलाइट पिक्चर्स कंफर्म दैट द ओजोन लेयर जो है वो उसका डिप्लीशन स्लो डाउन हो रहा है नाउ ए डेज विद द corona impact. Also we can see there is a long time happens in which the recovery of the ozone layer is done. Now there are some definitions which you should know. Then ozone is a molecule with 3 oxygen atom. Troposphere is the layer above 7 to 20 kilometer, and stratosphere is the second layer of the earth atmosphere, which is about 10 to 50 kilometer of the surface, and Dobson is the unit of the ozone in which ozone can be measured. Now what are the misconception? लोग सोचते हैं कि that global warming and ozone layer are together, and वो और ये CFC से हुई है. ऐसा नहीं है कि that ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को हार्मफुल लेयर से, और जबकि जो ओजोन लेयर है होल इन द ओजोन कैन क्रिएटेड बाय केमिकल्स मेड बाय द ह्यूमन बींग्स. CFC जो बहुत हैवी होते हैं टू रीच द स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसा नहीं है. वो बहुत हल्के बन जाते हैं क्योंकि वो गैसेस होते हैं, तो विंड के साथ मिक्स करके ऊपर चले जाते हैं. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर? Now we have to protect the ozone layer for our future, for our health, for our crops, for our property, for our welfare and human being, for the lives for longer purpose. Because अगर हम ज़्यादा समय तक वो करेंगे तो हमारे जेनेटिक लेवल चेंज हो सकते हैं.
Now we must go for non chlorofluorocarbon products. There are no CFCs, they are ozone friendly products. We should not use the products having CFCs. We should use the substitutes instead, as CFCs are the substitutes for CFCs. And now we should go ahead for the save the ozone layer depletion. If you have any query, you can ask me or message me in the contact